हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग थोड़ा इस साल का जो नया एग्ज़ाम पैटर्न है, नया सिलेबस पैटर्न है, उसको थोड़ा चर्चा करेंगे। ओके, एंड बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये सब बच्चे के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है, बिकॉज इस टाइम तुम लोगों का MCQ क्वेश्चन मिलेगा इन द फर्स्ट सेमिस्टर एंड द एग्ज़ाम विल बी इन द मंथ ऑफ नवंबर, राइट। नवंबर महीने में एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, फुल लेंथ पेपर, एंड सारे के सारे क्वेश्चन किस टाइप का होगा, MCQ टाइप का होगा, राइट। सो थोड़ा सिलेबस को लेकर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। कितना सिलेबस रहेगा, क्या क्या रिड्यूस्ड सिलेबस है, ओके, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ओके, बुक से। सो पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इस क्लास में, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। So I hope you all can see. So this is the syllabus. Okay, 3 chapters. The first 3 chapters. First one, force, work per energy. Okay, from here 3 sub part is there. Force, then work per energy. That is the second chapter in your book. If you have your ICSC Selena book, open it. Okay, and the machine. From machine there is some reduction. Okay, we'll see in details. Next topic is light. Okay, light is another unit. In the light unit, the first chapter होगा refraction of light at plane surface, second chapter है refraction through a lens, and third chapter spectrum. Then come to third unit, that is sound, and इस यूनिट से सब कुछ नहीं आएगा इस सेमिस्टर में, ओके। कुछ पार्ट सेकेंड सेमिस्टर में आएगा एंड कुछ पार्ट फर्स्ट सेमिस्टर में आएगा। तो फर्स्ट सेमिस्टर में क्या आएगा, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, echo, their use, and simple numerical problem on echoes. Okay, so these are just overview. Okay, ये just overview है, okay, क्या syllabus होगा. So it will start from force, work per energy and end to sound, but all things are not required from sound in this semester. Only the first part, only the first part. अब हम लोग देखेंगे कि फोर्स के अंदर, ये फर्स्ट जो चैप्टर फोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है, वर्क पर एनर्जी के अंदर क्या क्या पढ़ना है, मशीन के अंदर क्या रिड्यूस्ड हुआ है, क्या क्या पढ़ना है, देन फॉर दिस चैप्टर, देन फ्रॉम साउंड ऑल्सो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इन दैट पार्ट. So now students, we will see in details, okay, from each chapter. So this is the first chapter, that is force, work per energy. This is the first unit, you can tell, okay, force, work per energy. In that unit you will get 3 chapters. First chapter is force. If you have your book, just open it. I have also opened it. First chapter is force, second chapter work per energy, okay, and the third chapter is machine. Okay, so there is no reduction in the first and second chapter, that is force and work per energy. सब कुछ पढ़ना है ये 2 चैप्टर से, ओके, सब कुछ पढ़ना है। फोर्स के अंदर 3 डिवीज़न है। फर्स्ट डिवीज़न है मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम, सेकेंड डिवीज़न है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड थर्ड डिवीज़न है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सारे कुछ पढ़ना है, ठीक है। सो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ओके, मोमेंट ऑफ फोर्स, देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके, and uniform circular motion is also there. Just I am showing it here. So first I am telling from these 2 things. So elementary introduction, translational rotational motion, okay, torque, okay, and different examples, steering wheel, bicycle pedal, okay, clockwise anti-clockwise movements, their sign, okay, condition for a body to be in equilibrium, okay, everything from this chapter. And here the next part, that is uniform circular motion, okay, uniform circular motion. That means in uniform circular motion, what is the meaning of uniform, okay, in uniform circular motion what will be the acceleration is constant or not, that different things, centrifugal, centripetal forces, okay, different forces are there. In uniform circular motion means speed is constant, okay, that means details, everything you have to read from your book, and everything you will get in the page number 15 to 17. After that questions are there, okay. After that come to work energy power, that is the next chapter, work energy power, definition of work, then formula for work, in general formula, special cases, okay, then definition of energy,
and energy work done, they are equivalent. Various units of work and energy, okay, the conversion you can get in MCQ. Okay, next this power, kilowatt, okay, this is the unit of power. Horsepower also, okay. Different types of energy, from here also you can get different kind of question, okay, MCQ question. So chemical energy, mechanical energy, heat energy, solar energy, nuclear energy, different forms of energy, okay. So formula of kinetic energy, half mv square, okay. Derivations are not required, okay, here it is all the written derivation included, but as it is MCQ, ये MCQ क्वेश्चन होगा, ओके, MCQ क्वेश्चन पेपर होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, सो डेरिवेशन पढ़ने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है. After that, these different kinds of energy, chemical, heat, nuclear, light, sound, conversion. Suppose one example is given in the question paper. उसके बाद तुमको पूछा है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रहा है. लाइक सपोज गिवन क्वेश्चन लाउड स्पीकर. इन लाउड स्पीकर विच एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू विच एनर्जी. देन 4 ऑप्शंस आर गिवन, चारों ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें एक ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है. अच्छा, इसके बाद आ जाओ मशीन में. मशीन में थोड़ा रिडक्शन हुआ है. सो मशीन से क्या क्या पढ़ना है, फोर्स मल्टीप्लायर, लोड, एफर्ट, ओके, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी, पुली सिस्टम शोइंग यूटिलिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ मशीन. देन कम इन डिटेल्स, that is effort, okay, load, mechanical advantage, how it is related to load and effort. Then velocity ratio, how it is related to velocity of effort and load. Then relation between eta, ma and vr. You will keep in mind the formula. You will keep in mind the formula. You will get everything in the chapter in the chapter machine. So if you have your book, थोड़ा बुक को खोल लो, ठीक है, मार्क कर लो, अच्छा रहेगा. सो यहाँ पे ईटा का रिलेशन होता है, ईटा इक्वल टू एम ए बाई वी आर, ठीक है, एम ए बाई वी आर. सो ये रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. एंड ईटा का वैल्यू क्या क्या होता है, ठीक है, आइडियल मशीन के लिए, रियल और प्रैक्टिकल मशीन के लिए, ओके. इसके बाद आ जाओ पुली सिस्टम में, ओके. इसके बाद एक लीवर पार्ट है जो रिडक्शन हुआ है, लीवर, ठीक है. लीवर पढ़ने का ज़रूरी नहीं है, ओके, लीवर ज़रूरी नहीं है, लीवर नहीं चाहिए. आ जाओ सेकेंड यूनिट में, सेकेंड पार्ट में क्या है, पुली सिस्टम. पुली सिस्टम से क्या क्या पढ़ना है, सिंगल फिक्स्ड, सिंगल मूवेबल एंड ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ओके. हियर यू कैन गेट डायग्रामेटिक क्वेश्चन, ओके. ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम इज गिवन इन डायग्राम. यू सपोज तुमको पूछा है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, ठीक है, लोड इतना दिया हुआ है, लोड दिया हुआ है तो एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा, एफर्ट कितना होगा, ओके. सो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन मिल सकता है. तो ये पार्ट, पुली पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लीवर नहीं पढ़ना है, ठीक है. इसके बाद आ जाओ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है. दैट इज थियोरेटिकल वेरिफिकेशन इज u प्लस के इक्वल टू कॉन्स्टेंट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, कांस्टेंट फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ओके. एंड यू प्लस के कांस्टेंट रहेगा किसके लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए, ठीक है. वो जो एक डायग्राम है बुक में, बहुत ही अच्छी तरह से एक डायग्राम दिया हुआ है. चले जाओ पेज नंबर 45 में. पेज नंबर 45 में एक इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है सिंपल पेंडुलम का, राइट. बॉब का पोजीशन, दिस इज मीन पोजीशन, ओके. सपोज दिस डायग्राम इज गिवन. What will happen at this position? What will be the kinetic energy, potential energy at this position? So here we know kinetic energy becomes 0, potential energy becomes maximum, okay. What will happen to this position? This position is called mean position. Here what happens, kinetic energy becomes maximum and potential energy becomes 0, okay. So different kinds of question मिल सकता है. So ये छोटा छोटा पॉइंट एंड अच्छी तरह से पढ़ना है, ईच टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना है, ईच लाइन को अच्छी तरह से पढ़ना है MCQ अटेम्प्ट करने के पहले, ओके. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ लाइट. इन दिस यूनिट देयर आर 3 चैप्टर्स. पहले ही बोला था 3 चैप्टर्स क्या क्या है. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस एंड स्पेक्ट्रम. यहाँ पे भी एक छोटा पार्ट रिड्यूस्ड हुआ, ओके, वो मैं बता दूंगा. उसके पहले तुम्हारा ये जो सेलिना बुक उसको ओपन कर लो, अच्छा रहेगा.
तुम लोगों के लिए, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास ब्लॉक, ओके, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ओके, simple application such as real and apparent depth, okay, apparent bending of stick in water, application of refraction of light, okay, these are the main topic. Then come to different part, that is laws of refraction, okay, effect of speed, wavelength, frequency, okay, what happens when the light enters from one medium to another medium, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करेगा तो क्या क्या चेंज होगा, ओके, वेलोसिटी कैसे चेंज होगा, स्पीड कैसे चेंज होगा, वेवलेंथ कैसे चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगा, ठीक है। कंडीशन फॉर लाइट रे टू पास अनडेविएटेड, कंडीशन क्या है अनडेविएटेड का। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, अगर ये दो मीडियम अलग अलग हैं तो डेविएट होता है, आइदर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट ये अनडेविएटेड का भी कंडीशन है, तो वो कंडीशन क्या क्या है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ स्पीड ऑफ लाइट का एक रिलेशन है, म्यू इक्वल टू c/v, ठीक है, ओके। देन डिफरेंट एप्लीकेशन, इसके बाद डिफरेंट एप्लीकेशन क्या क्या है, ये एक है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास ब्लॉक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ओके, फॉर विच कलर लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, कौन सा कलर के लिए कम होगा, ठीक है। इफ इट इज़ गिवन दैट रेड एंड वायलेट लाइट, देन कौन सा कलर के लिए ज़्यादा होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, कौन सा कलर के लिए कम होगा, ओके। रियल एंड अपरेंट डेप्थ, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यूजिंग द फॉर्मूला म्यू इक्वल टू c/v, okay, this is the main formula for getting the numerical, okay, yes, this is the main one, okay. Then ray diagrams, okay, although in MCQ में तुमको रे डायग्राम ड्राइंग नहीं करना पड़ेगा, बट क्वेश्चन में मिल सकता है कि रे डायग्राम दिया हुआ है, सपोज एक प्रिज्म का रे डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद तुमको डिफरेंट हर तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन तुमको मिल सकता है। इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, देन ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, ओके, देन कंपैरिजन ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर, ओके, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन क्या क्या है, एक अच्छा एप्लीकेशन है दैट इज ऑप्टिकल फाइबर, राइट। अनदर एप्लीकेशन है डायमंड, व्हेन डायमंड से डायमंड चमकता है उसका मतलब क्या है, वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसके बाद आ जाओ क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, ओके, म्यू इक्वल टू 1/c रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, दे आर रिलेटेड इन दिस वे, म्यू इक्वल टू 1/sin c, okay, म्यू इक्वल टू 1/sin c. This mu is what? Mu is the refractive index of denser, keep in mind, denser with respect to rarer. देन इस तरह का डिफरेंट डायग्राम्स है, डायग्राम भी तुम्हारा बुक में दिया हुआ है, अगर तुम बुक ओपन करो पेज नंबर 94, 95, 96, many diagrams are given and also their applications are given, okay, applications are given to internal reflection from a prism, reflection from a plane mirror, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है, टोटल इन रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल रिफ्लेक्शन का डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है, यहाँ से भी MCQ पूछ सकता है। इसके बाद आ जाओ लेंस, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, दैट मीन्स कन्वेक्स एंड कनकेव, ओके, कन्वर्जिंग मीन्स कन्वेक्स, डाइवर्जिंग मीन्स कनकेव, सो कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, ओके। रे डायग्राम्स, अगेन आई एम टेलिंग, रे डायग्राम तुमको नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा एग्जाम में इस टाइम फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि MCQ टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। सो तुमको पोजीशन पूछ सकता है, ठीक है, नेचर पूछ सकता है, नेचर का 4 ऑप्शन दे दिया कौन सा सही होगा, पोजीशन का 4 ऑप्शन दे दिया कौन सा सही होगा, ठीक है, एक रे डायग्राम दे दिया क्वेश्चन में, एक रे डायग्राम दे दिया, यहाँ पे दे दिया कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये सेकेंड फोकस है, ये फर्स्ट फोकस है, एक ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे दिया कि पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, ठीक है, ग्रेटर देन एप, ठीक है, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी तरह का 4 ऑप्शन दे दिया कौन सा सही होगा। सो इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है, ओके। उसके बाद फोकल प्लेन क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, ठीक है, लेंस, स्फेरिकल लेंस थ्रू रे डायग्राम, ओके, फॉर्मेशन ऑफ ray diagram, okay, convex concave lens, okay, so these are things, this type of question you can get, okay, you will not get to draw the ray diagram,
सो इसके बाद यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम, कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. साइन कन्वेंशन, very very important. Okay, direct numerical, very very important. Okay, using Lenz formula. What is the Lenz formula? 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f, right? You have to put the values with proper sign. Okay, derivation formula, derivation so not required, no need to read the derivation. Okay, Lenz formula are included. Lenz formula, using Lenz formula you can get numerical. Directly you can get question which of the following is the correct relation between v, u and f for a lens, then this is the correct relation. Okay, and इसके बाद पावर ऑफ लेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कन्वेक्शन कनकेव लेंस का जो पावर का फॉर्मूला होता है वहाँ पे किसके लिए पॉजिटिव होता है, किसके लिए नेगेटिव होता है. पॉजिटिव साइन पावर इज गिवन, पावर इक्वल टू +2. ओके, इसका मतलब क्या क्या है, ये पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है, पावर जब 2 है इसका मतलब क्या क्या है. यहाँ से कैसे फोकल लेंथ निकाले, फोकल लेंथ इक्वल टू 1 बाई पावर. ओके, पावर का यूनिट है डायोप्टर, पावर इन डायोप्टर कैपिटल डी, देन फोकल लेंथ मिलेगा मीटर में. ओके, और यू कैन राइट पी इक्वल टू 1 बाई एफ इन मीटर. ओके, सो पावर का रिलेशन क्या क्या है, थिकनेस के हिसाब से पावर कैसे चेंज होता है. ओके, अगर थिक लेंस लोगे और थिन लेंस लोगे, ठीक है, सेम मटेरियल का थिक एंड थिन, किसके लिए पावर ज़्यादा होगा, किसके लिए फोकल लेंथ ज़्यादा होगा. ओके, एप्लीकेशन क्या क्या है. ओके, देन कम टू यूजिंग अ ट्रायंगुलर प्रिज्म टू प्रोड्यूस विजिबल स्पेक्ट्रम. देन कम टू स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम मीन्स यू विल गेट, सब कुछ तुमको मिलेगा स्पेक्ट्रम का. हाँ, यहाँ पे जो एक चीज़ रिड्यूस हुआ वो है पेज 127. In page 127, magnifying glass and application of lenses, that part is reduced. Okay, that part D, magnifying glass and application of lenses, page 127, that part is reduced. Okay, come to spectrum, chapter 6, page 133. Chapter 6, page 133. So spectrum from white light, electromagnetic spectrum. Okay, that is 7 electromagnetic spectrums are there, 7 type, that is radio wave, microwave, infrared, visible, ultraviolet, x-ray, then gamma ray. Okay, so these all names you have to keep in mind. So ये सारे नेम तुमको याद करना पड़ेगा. ओके, इन अ प्रॉपर ऑर्डर, व्हेन यू आर रिमेंबरिंग दोज नेम्स, एक प्रॉपर ऑर्डर में दिमाग में रखो. ठीक है, ऐसे नहीं कि इधर उधर सब कुछ इधर उधर मत करो. ठीक है, एक प्रॉपर ऑर्डर में दिमाग में रखो. रेडियो, then micro, okay, then infra, okay, then visible, okay, then ultraviolet, then x-ray, then gamma ray. Okay, gamma ray. So in this way एक प्रॉपर ऑर्डर में दिमाग में रखो. ठीक है, ये तुमको हेल्प करेगा. प्रॉपर्टीज़ कॉमन टू ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, प्रॉपर्टीज़ एक है, ये सब जो वेव है इसके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए प्रोपागेट होने के लिए. ठीक है, इसके लिए इसका स्पीड इन एयर क्या होता है, सेम होता है, एंड इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये जो वेव है, ये सब जो वेव है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, ऑल वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर. ओके, ये सब वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. दैट मीन्स ये सब वेव फॉर्म करने के लिए कोई चार्ज नहीं चाहिए. नो चार्जेस आर रिक्वायर्ड. ओके, नो चार्जेस आर रिक्वायर्ड. फॉर दैट रीज़न ये जो वेव है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये सब वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में नो डिफ्लेक्शन होता है, कोई डिफ्लेक्ट नहीं होगा, नो डिफ्लेक्शन. ओके, बिकॉज दीज waves are not made up of charge. Okay, and you have to read the properties and uses of infrared and ultraviolet. Only infrared and ultraviolet. Okay, only infrared and ultraviolet you will read. Okay, that means for these two ray, infrared and ultraviolet, everything you have to read. Okay, everything. That means the detection, okay, the source, then harmful effect, use, okay, properties, everything you have to read for these two rays. Okay, these two waves, infrared and ultraviolet. And for other rays, just keep in mind their names, okay, in proper order.
ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया शायद। ओके, सो इसके बाद आ जाओ लास्ट थिंग, दैट इज साउंड। फ्रॉम साउंड यू हैव टू रीड ओनली द फर्स्ट पार्ट, only the first part is required in first semester, only the first part, second part is not required now, second part is not required now, only the first part is required for first semester. Reflection of sound wave, echo, their use, and simple numerical problem on echo. Okay, that means sonar, bat, dolphin. Okay, from in sonar you can get some numerical, okay, formula is there, production of echo, condition of the formation of echo, okay, simple numerical problem using echo. So these all are the syllabus किसके लिए, तुम लोगों का फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए, ICSE फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए यही सिलेबस है फिजिक्स का, ठीक है। तो यही कुछ पढ़ना है, जो रिड्यूस हुआ, ज़्यादा कुछ रिड्यूस नहीं हुआ, मशीन से लीवर पर रिड्यूस हुआ, एंड लाइट से वही फोर्थ पार्ट रिड्यूस्ड हुआ, ओके, फोर्थ पार्ट, एंड स्पेक्ट्रम से स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये नहीं चाहिए, जो पेज नंबर 145 में है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड इट्स एप्लीकेशन, ये नहीं चाहिए, ओके। दैट मीन्स अप टू पेज नंबर 143 यू हैव टू रीड, एंड इन बिटवीन यू डोंट हैव टू रीड लीवर नहीं पढ़ना है, एंड इन बिटवीन और एक छोटा टॉपिक नहीं पढ़ना है जो पेज नंबर 127 में है, मैग्नीफाइंग ग्लास एंड एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, ये पार्ट भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया, ओके, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, थोड़ा आइडिया मिल गया, ओके। एक दो बार इस वीडियो को देख लो, मार्क कर लो बुक में, ठीक है, अच्छा रहेगा। उसके बाद एक लाइन को, हर लाइन को अच्छी तरह से पढ़ो, क्योंकि ये MCQ एग्ज़ाम है, MCQ एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन देगा तुमको मालूम ही नहीं चलेगा, एक छोटा पॉइंट को लेकर भी MCQ क्वेश्चन बना जा सकता है, तो तुमको नहीं पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है अगर तुम हर एक लाइन को अच्छी तरह से नहीं पढ़ोगे, ठीक है। एंड ये जो MCQ एग्ज़ाम है इसमें तुम लोग 80 आउट ऑफ 80 मिल सकता है तुम लोगों का, ठीक है, अगर थोड़ा सीरियस हो जाओ, ठीक है, थोड़ा अच्छी तरह से बुक को पढ़ो, ओके। एंड एज यू आर यूजिंग इंटरनेट नाउ इट इज़, यू सर्च इन द गूगल, ओके, कि give the chapter's name and then write MCQ questions from chapter this, okay, you will get many questions because the site is there, Byju's site is there, Vedantu site is there, okay, CBSE different sites are there, okay। so हर एक साइट से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा, हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, क्योंकि MCQ में कोई कॉमन क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सीरियस हो जाओ एंड जान लगा दो 80 से 80 मिलने के लिए, ठीक है। अगर 80 से 80 मिल जाएगा इस फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सेकंड सेमेस्टर में ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा तुम लोगों का, एंड तुम लोग अच्छी तरह से एंड ईज़िली 90 प्लस मार्क कर सकते हो, ईज़िली 90 प्लस मार्क कर सकते हो एवरीवन, ओके। सो इस सेमेस्टर में ज़्यादा टाइम नहीं है, सीरियस हो जाओ, थोड़ा अच्छी सी पढ़ाई करो, ठीक है। सो एंड एवरीवन विल गेट गुड मार्क्स, ओके। कीप फेथ इन योरसेल्फ एंड कीप प्रैक्टिसिंग, ओके। एक चैप्टर से हर एक चैप्टर से पहले चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लो, ओके। उसके बाद हर एक चैप्टर से MCQ फाइंड करो, इंटरनेट से फाइंड करो, बुक से फाइंड करो, ओके। फाइंड करके प्रैक्टिस करो, ओनली प्रैक्टिस, ओके। प्रैक्टिस करोगे तो तुमको 80 से 80 मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़, ओके। वी हैव एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली the whole syllabus for the first term exam, okay, for physics, okay. And I will also try to put some MCQ questions in the video, okay, some MCQ question from different chapters. I will also try to put week wise, okay, few MCQ question, at least 10-15 MCQ question from each chapters week wise, weekly once if I can put, okay. I'll try my level best, and also you all practice, okay. So I hope you have enjoyed and keep watching. Thank you everyone.